हे स्मार्ट पीपल, यू मोस्ट वेलकम हियर। और क्या हाल है आपके? आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो दैट्स गोइंग टू बी अ फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। इसको हम स्टार्ट करेंगे एंड दैट्स अ शॉर्ट सेशन, सिर्फ 30 मिनट्स का सेशन होगा हमारा। इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ग्लैंड्स के बारे में, राइट। लाइक सलाइवरी ग्लैंड, लाइक लिवर, पेनक्रियाज। तो कुछ ऐसी हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स हैं दैट बेसिकली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फाइन, लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस पार्ट. And you can see this is some of the credentials of mine and the profile. I'm a plus verified educator, as well as if you want to join the plus courses, so we have different courses ongoing right now on the batches, right. That is achievers batch, है ना. As the name suggests you have to achieve your goal. So for that we have a team of top educators. You can just join this, and the course has been started from 1st of October, as well as you can see the different educators who are taking your classes, right. And इसके अलावा लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक विच वी आर अबाउट टू डिस्कस टुडे, दैट्स डाइजेस्टिव सिस्टम. तो देखो, इस चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या देखा है. सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द बक्कल कैविटी, राइट. जहाँ हमने डिस्कशन किया था, द वेरी फर्स्ट पार्ट यू हैव दैट इज योर ब्यूटीफुल लिप्स, है ना. देन उसके बाद आपके पास आती है बक्कल कैविटी, जिसमें आपके पास माउथ होगा, फ्रेनुलम होगा, लिंगुअल फ्रेनुलम हो गया, है ना, एंड पैलेट इज देयर, उल्वा होगा. बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे उसके अंदर, राइट. देन वी मूव ऑन टू द ईसोफेगस, दैट्स अ पाइप जिससे खाना जो है वो नीचे पुश होता है, बोलस टेक्निकल टर्म, राइट. एंड इसके अलावा हमने बात की थी इसके बारे में, देन वी टॉक अबाउट द स्टमक ऑल्सो, है ना. नाउ दिस इज समथिंग विल डिस्कस इन स्टमक ऑल्सो. वी हैव सेवरल ग्लैंड्स देयर, है ना. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर देयर, प्रोडक्शन ऑफ HCl, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस. दीज थिंग्स समहाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक, ओके. So you can see we have the digestive glands, or one is the alimentary canal. What do we have? We have the alimentary canal. And second, what do we have? We have the accessory glands. तो आज हम बात करेंगे accessory glands के बारे में, ठीक है. अब now in the accessory glands, what do we have? See, name suggests you accessory. That means they are something which is going to help in the process of digestion. So we have these glands. First is called as accessory digestive gland. Second is called as accessory alimentary canal glands. So these are the glands which are somehow connected with your alimentary canal, and these are the glands which are not connected with your alimentary canal. हमारा discussion इस पे होगा, ठीक है. And what do we have in this? The first part we have that is called as a salivary gland, right. That basically keeps on producing saliva in your mouth, है ना. Whether you think about the food, whether you smell some food, whether you put something in your mouth, है ना, or whenever you see something, so at that time also you will see that production of saliva keeps on continue. And the second part you have, that is liver. Liver, this is again a very important और सबसे ज़्यादा important structure है आपकी बॉडी का, although it has the property of regeneration also, है ना. बट कहते हैं ना, जितने तुम्हारे मार्क्स नहीं आए होंगे ना, उससे ज़्यादा इसके फंक्शंस होते हैं लिवर के. वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 200 फंक्शंस ऑफ लिवर इन द बॉडी. बहुत फंक्शंस है इसके, ठीक है. एंड द थर्ड थिंग व्हाट डू वी हैव, दैट इज पेनक्रियाज. These are the three organs that we have to discuss, and now let us quickly start with the first one, that is salivary gland. Okay, you can see accessory digestive glands क्या हैं. These are the glands that are associated with the alimentary canal but are not in the part of the alimentary canal. तो हेल्प तो कर रहे हैं डाइजेशन में, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? फर्स्ट यू हैव द बकल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस. दिस इज व्हाट द होल एलिमेंट्री कैनाल वी हैव, राइट. देन दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं इसको. दिस इज समथिंग जो हम एक अलग चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, है ना. एंड हैव सम डक्ट टू कैरी आउट द सिक्रेशन. मतलब इनके पास अपनी खुद की क्या होती है? डक्ट्स होती हैं, ओके. सो ये हो गया ये वाला पार्ट. आते हैं स्लैवरी ग्लैंड के ऊपर, एंड इसमें आपको बता दूं कि फर्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट द फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं स्लैवरी ग्लैंड के, ठीक है. एंड वी विल टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन, इसकी भी हम बात करने वाले हैं. तो फर्स्ट लेट्स have some few points regarding the salivary gland. These glands are these glands secrete the saliva, right? The watery fluid that you have in your mouth, है ना. Whenever we talk about the delicious food, है ना. So these fluids that comes in your mind, and they are basically responsible for the engulfing of bolus also, है ना. जैसे कहते हैं ना, चटनी अगर हमें बनानी हो, so in that case can you make the chutney with the help of like mint and some spices and some other ingredients? The answer is no. You obviously had to add some water in it in order to make a paste of that.
So the same thing is done with the saliva also. जो खाना हम खा रहे हैं, our buccal cavity is chewing that, है ना, just breaking it into simpler pieces. मगर उसका पेस्ट बना के उसे engulf करना बहुत जरूरी है. So that is the function which is performed by the saliva here. ठीक है. Next, saliva is a watery substance, है ना, produces in the mouth and in the certain animals including the humans. Okay. और हमारे अंदर ही नहीं, काफ़ी सारे मैमल्स हैं, उनमें भी सलाइवा जो है कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता है. लाइक यू माइट हैव सीन द डॉग्स, है ना. डॉग्स हमेशा अपनी जो टंग है उसको बाहर रखते हैं और देयर इज ऑलवेज द वाटरी फ्लूइड विच कम्स आउट देयर माउथ, है ना. तो यू कैन थिंक अबाउट इट ऑल्सो कि ऐसा क्यों होता है कि डॉग्स हमेशा अपनी टंग को अपने बाहर रखते हैं, है ना. तो यू कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो. ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि वाई एलिफेंट्स, है ना, एलिफेंट्स के बाद बहुत बड़े बड़े पिन्ना होते हैं एंड दे कीप्स ऑन मूविंग देयर पिन्ना. The reason behind that is basically they keep their body cool or they regulate their temperature with the help of these structures. ये कुछ mammalian characteristics होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. Then it is a slightly acidic in nature. जो saliva है वो slightly acidic in nature है because it helps in the digestion of carbohydrates, right? And 1 to 1.5 in secretion per day in the human body. तो 1 से 1.5 लीटर जो है saliva जो है वो हर दिन secrete होता है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. चलो, तो दिस इज द बेसिक थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशंस हियर. तो क्या क्या होता है सर हमारे सलाइवा में. सो द फर्स्ट थिंग वी हैव हियर दैट इज, इसमें होता है कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस. एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस, ठीक है. ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आपकी बॉडी में लाइक द फूड विच यू आर हैविंग और द जस्ट रिमेंबर व्हाट यू हैड द लास्ट मील, है ना. लाइक आई हैड द बर्गर. सो उस बर्गर में क्या थे, बहुत सारे कुछ हो सकता है कि लाइक देयर कैन बी सेवरल बैक्टीरियाज, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. तो उसको मारने के लिए वी हैव सम एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस इन द सलाइवा. सेकंड थिंग वी हैव लाइसोजाइम. लाइसोजाइम इज समथिंग, इट्स एन एंजाइम जो आपकी माउथ में आने वाले कुछ बैक्टीरियाज को, आने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वायरसेस को, उन सबको मारता है. ठीक है. लाइसोजाइम इज देयर. इसके अलावा वी हैव अ इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉल्ड एज अ सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी amylase, है ना, also popularly called as a tylen. T silent here, okay. So this salivary amylase जो होता है करता क्या है, this basically convert the starch into glucose. It breaks down the starch, है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है ना. And this is the way to study this chapter also. When you want to study this whole chapter, so firstly you have to break this into simpler pieces, है ना. Just take some time, try to digest this, है ना. Take some small topics, understand that part, and then only we will move on to the part, है ना. And this is something I always keep on telling you कि यार कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, लाइक इफ यू वांट टू स्टडी इवोल्यूशन, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना. जस्ट डिवाइड द चैप्टर ऑफ इवोल्यूशन इन जस्ट थ्रू आउट द मंथ. स्टार्टिंग के 12 दिन ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ो, उसके बाद फिर ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ो. ठीक है. तो ऐसी बायोटेक अगर आपको पढ़ना है तो बायोटेक के लिए आपको हर चीज़ लिखनी पड़ेगी. बट आई टीच यू द बायोटेक, सो आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग एवरीथिंग. आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम्स ऑल्सो. दिस इज द वे टू स्टडी, है ना. तो ऐसी अगर हम बात करें स्लाइवरी अमाइलेज के बारे में, तो दिस बेसिकली हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल ग्लूकोज लाइक माल्टोज, डाइसैकेराइड. ओके, उसमें तोड़ने में हेल्प करता है. ओके. उसके अलावा व्हाट डू वी हैव सर. इसके अलावा वी कैन ऑल्सो हैव 1 2 3 4, मोस्टली इट हैज़ द वाटर. ऑब्वियसली, है ना, नाम सुन के हमें पता लगता है सलाइवा इट्स अ वाटरी फ्लूइड. उसमें मोस्टली क्या होता है, 90 से लेके 92% या वी कैन से 99% क्या होता है, इसमें वाटर होता है. ठीक है. इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट, इट हैज़ सम सॉल्ट ऑल्सो. सॉल्ट लाइक इट हैज़ द मैग्नीशियम, इट हैज़ कैल्शियम, इट हैज़ सोडियम. तो ऐसे कुछ पास आयंस भी होते हैं. ठीक है. इट हैज़ सम आयंस एंड सॉल्ट, आयंस एंड सॉल्ट ऑल्सो. एंड इफ यू शुड नो दिस थिंग कि आपकी बॉडी में जो आपकी माउथ में सलाइवा है, उस सलाइवरी अमाइलेज जो है दैट्स एन एंजाइम, है ना. टाइलिन को एक्टिवेट करने के लिए एटलीस्ट यू रिक्वायर द कैल्शियम ऑल्सो. तो कैल्शियम इज present inside the saliva at the maximum quantity in order to activate the tylen. Fine. जैसे पैप्सिन जो होता है, दिस इज बेसिकली एक्टिवेटेड. हु इज द स्टिमुलेंट फॉर दिस. तो जो आपके पास HCl है ना, दैट इज बेसिकली हेल्पिंग इन द स्टिमुलेशन ऑफ द पैप्सिन. सिमिलरली हियर टाइलिन को एक्टिवेट करने के लिए वी हैव द कैल्शियम आयंस. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट वी कैन से, इसमें हमारे पास और क्या हो सकता है. तो इन द सलाइवा वी हैव सम एंटीबॉडीज ऑल्सो. या लाइपेज हमारे पास यहाँ पे होगा. बट रिमेंबर दैट लाइपेज इज नॉट फंक्शनल हियर. ऑल्दो आवर सलाइवा हैज़ द लाइपेज, बट इट विल बिकम फंक्शनल व्हेन इट रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. वहाँ जाके इसका फंक्शन जो है आने वाला है. अभी एक नॉन फंक्शनल या फिर इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगा. अंडरस्टूड. आर यू विद मी? क्लियर? So this is the composition of the saliva we have talked about.
फंक्शंस की बात की जाए, है ना, तो फंक्शंस में क्या होगा, इट हेल्प्स टू मेक द बोलस. व्हाट इज बोलस? बोलस इज फूड प्लस सलाइवा. फूड प्लस सलाइवा, ठीक है. फूड में जब वो वाटरी फ्लूइड या एसिडिक जो फ्लूइड है वो मिक्स होता है तो इट मेक्स द बोलस, एंड बोलस इज वेरी इजी फॉर अस टू इनगल्फ समथिंग, राइट. सेकंड, व्हाट डू वी हैव? अनदर फंक्शन ऑफ द सलाइवा इज बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज. स्टार्च इनटू ग्लूकोज, इसमें भी हेल्प करता है सलाइवा, ठीक है. थर्ड थिंग, सलाइवा ऑल्सो हेल्प्स इन टेस्टिंग. टेस्टिंग में भी हेल्प करता है ना. ध्यान रखना, कोई भी सॉलिड चीज का फूड आप टेस्ट आप ले ही नहीं सकते. इफ यू कीप समथिंग विच इज सॉलिड इन योर माउथ, यू कैन नेवर टेस्ट दैट. उसका टेस्ट आपको पता ही नहीं लगेगा, बिकॉज व्हेन यू कीप समथिंग ऑन योर टंग, तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे सलाइवा सिक्रीट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड प्रोडक्शन ओनली यू कैन टेस्ट समथिंग. टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो किसी भी सॉलिड चीज का टेस्ट ले ही नहीं सकते, ठीक है. दैट इज वाई यू कीप एनीथिंग इन योर माउथ. इवन आई कीप दिस पेन इन माई माउथ, सो सलाइवा कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग. हाँ, तो वो टेस्टिंग में भी हमारी हेल्प करता है. और टाइप्स ऑफ टेस्ट की हम बात कर चुके हैं, जैसे कि आपका होता है स्वीट, सॉल्ट, बिटर, एंड यू हैव अमामी, उमामी, है ना. सो दीज आर द डिफरेंट टेस्ट दैट यू हैव, ठीक है. टेस्ट के बारे में एक बात तो ध्यान रखना कि कोल्ड एंड चिली, कोल्ड एंड चिली आर नॉट टेस्ट, दीज आर ओनली द सेंसेशन. राइट, आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड वी हैव डिस्कस्ड, है ना. इससे ज़्यादा हमें कुछ खास नहीं पढ़ना है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिवर हियर. लिवर यूनिवर्सल, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है हमारी बॉडी में. एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू रीजनरेट ऑल्सो. मतलब कि अगर इफ समबडी इज डोनेटिंग द लिवर, कोई एक छोटा सा पार्ट काट के अगर लिवर को डोनेट किया जाए तो अपने आप को वापस से रीग्रो भी कर लेगा, ठीक है. तो बात करते हैं इसके बारे में. नाउ फर्स्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. पहली बात, है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की. और इसका वेट कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 1.2 से 1.5 kg. ये भारी है ना, इन एडल्ट. तो दिस इज द अबाउट द वेट, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. और ये कुछ इस जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है. दिस इज जस्ट बिसाइड द ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में होता है ये, ठीक है. इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. अपर राइट साइड, ऑल्दो इसके दो लोब्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, मगर इसकी लोकेशन क्या है? राइट साइड में. तो दिस राइट साइड में क्या होती है? इसकी लोकेशन होती है. और इसी की वजह से किडनी जो होती है, किडनी हल्की सी स्लाइटली नीचे की तरफ शिफ्टेड होती है बिकॉज ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर, ठीक है. तो इसके दो लोब्स हैं. दिस इज द फर्स्ट लोब कॉल्ड एज अ राइट लोब, राइट लोब, एंड दिस इज द लेफ्ट लोब. आगे बात समझ में, ठीक है. दिस इज द राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लोब. इनको सेपरेट करती हुई एक लाइन है. दिस इज कॉल्ड एज अ फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है. आई थिंक हमने पढ़ा होगा लिगामेंट्स क्या होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देयर वी टॉक अबाउट लाइक इन द फीमेल्स दे हैव द ओवरी, एंड ओवरी इज बेसिकली अटैच और हैंग्ड विद द हेल्प ऑफ सम लिगामेंट्स देयर. तो हमने डिफरेंट टाइप के लिगामेंट्स की बात की थी, तो सिमिलर हियर आल्सो वी हैव सम लिगामेंट्स, ठीक है. दिस इज द राइट लोब वी हैव, एंड दिस इज द लिवर स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे ना कुछ आपको डक्ट्स दिख रही होंगी, राइट. तो फर्स्ट थिंग इज, ये पूरा एक ही पार्ट है, बस सेपरेट हो रखा है किससे, है ना. दिस इज सेपरेटेड बाय द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट. पूरा एक ही पार्ट है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. अब बात करते हैं कौन कौन सी डक्ट्स जो होती हैं वो इस लिवर के थ्रू पास हो रही होती हैं. तो डक्ट्स की बात करेंगे, एंड उससे पहले आई जस्ट वांट टू शो यू डायग्राम हियर. हम इस डायग्राम को खुद से बनाने की कोशिश भी करेंगे, एंड इससे आपको समझ में आ रहा होगा हाउ कॉम्प्लेक्स दिस इज, है ना. बट डोंट वरी, we'll discuss each and everything here, and we'll try to draw this also. As I always tell you, this is the something, the only thing which you need in my class is just a pen and a paper. Sit with a pen and a paper, है ना. हम डायग्राम खुद से बनाएंगे एंड वी विल मेक इट ईजी, है ना. और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बच्चों को ना बहुत पेन होता है. मीन्स व्हेन दे स्टडी दिस पार्ट, है ना, डायग्राम्स, और वी हैव द नाम, वी हैव द टिपिकल नेम्स, स्कैरी नेम्स, है ना, अबाउट द साइंटिफिक नेम्स ऑल्सो. तो दिस इज समथिंग वेयर द स्टूडेंट्स फील अ लॉट ऑफ पेन, बट व्हेन आई एम हियर विल कन्वर्ट दिस पेन इनटू गेन, है ना. तो कुछ अच्छा लेके जाएंगे हम इस चैप्टर में से. तो देखो यहाँ पे राइट लोब है हमारे पास, ये लेफ्ट लोब है. एंड लेट्स टॉक अबाउट द वेन्स. यू कैन सी हियर, देखो राइट लोब से आने वाली जो वेन, जो डक्ट्स है, वी कॉल दिस एज अ राइट हेपेटिक डक्ट. ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड विच इज रिलेटेड टू द लिवर, द वर्ड विच इज related to liver is called as hepatic. The word which is related to the kidney is called as renal. The word which is related to the lungs called as a pulmonary, है ना. The word which is related to the heart is called as cardiac. तो ये कुछ words आपको पता होना चाहिए. And this is the right lobe, so it has the right hepatic duct. This is the left lobe, so it has the left hepatic duct. This is something left hepatic duct.
दो डक्ट्स हो गई, ठीक है। अब नाउ वेयर द प्लेस जहाँ पे राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो मिलती है ना, दिस प्लेस है ना, दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज अ कॉमन हेपेटिक डक्ट। जहाँ पे ये मिल रही है वी कॉल इट एज अ कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। तो राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दे कंबाइन टू फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये है हमारे पास गॉल ब्लैडर। गोल ब्लैडर इज अ पियर शेप स्ट्रक्चर, है ना। इसमें क्या होता है, बाइल जूस सिक्रीट होता है, सॉरी स्टोर होता है। दीज two lobes of the liver keep on producing the bile juice and finally the bile juice enter inside the cystic enter inside the gallbladder। अब सर इसमें क्यों आ रहा है, डायरेक्टली ये रिलीज क्यों नहीं हो रहा ड्यूडेनम के अंदर? जस्ट बिकॉज कि भाई पहले जो हमारे लिवर से जो बाइल जूस निकल रहा है उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है हमें, बहुत सारा पानी है उसमें, वी हैव टू रिमूव द वाटर। So this is something the function which is done by the gallbladder here, and the duct which is released from the gallbladder is called as a cystic duct। कौन सी डक्ट है, सिस्टिक डक्ट। नो सर याद नहीं हो रहा, कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में सारे नाम लिख दूंगा, यहाँ पे कौन कौन सी अभी हमें पढ़ी है। वी आर टॉक अबाउट द राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, एंड इसके बाद हमें दो डक्ट्स और पढ़नी है, बस दो डक्ट्स और, ठीक है। तो एक बार रिवाइज मारते हैं, लेट मी इरेज ऑल द थिंग्स। So first what do we have? We have the right hepatic duct here. We have the left hepatic duct. They both combine to form the common hepatic duct. Common hepatic duct. पहला नाम या तीसरा नाम, तीसरा नाम, ठीक है। This is the first name. Left hepatic duct. दूसरा, ठीक है। First name is this. Right hepatic duct. आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव द गॉल ब्लैडर। करता क्या है गॉल ब्लैडर? लिवर जिस बाइल जूस को प्रोड्यूस कर रहा है गॉल ब्लैडर से स्टोर करता है एंड इट रिमूव द वाटर फ्रॉम इट, बिकॉज वी नीड कॉन्सेंट्रेटेड बाइल इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट द फैट और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टिक डक्ट सॉरी बाइल जूस चाहिए होता है और वो यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। समटाइम व्हाट हैपन कि कुछ लोगों में ना ये गॉल ब्लैडर का ना इन्फेक्शन भी हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इन दैट केस विद हेल्प ऑफ सर्जरी इस गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है ना। एंड इन दैट केस उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि यार आप फैट अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड मत करो। क्यों? बिकॉज आपकी बॉडी में अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो आपका जो बाइल जूस है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह पाएगा, और अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा तो बॉडी में फैट्स डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए उसको अपनी डाइट में फैट कम करने की सजेशन दिया जाता है, ठीक है। And the duct which is coming out from the gallbladder is called as a cystic duct. This is the fourth duct, ठीक है, cystic duct, ठीक है। अब ये cystic duct आ रही है और यहाँ से कौन आ रही है, common hepatic duct। The place where this cystic duct and common hepatic duct meets, we call this place as a common bile duct। तो इसमें bile आ रहा है ना, तो this is called as a common bile duct। This is the fifth duct we have, ठीक है। अब एक बार ये पूरे लिवर से ये जो बाइल जूस था ये बाहर निकल चुका है, ठीक है। एंड दिस इज द प्लेस वी हैव अ स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट कॉल्ड एज अ ड्यूडेनम, ठीक है। यहाँ पे आके अब ये एंटर करने वाली है, मगर उससे पहले एक और डक्ट आके इनको ज्वाइन करती है। वो डक्ट कौन सी है? वो है पेनक्रियास से आने वाली पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। पेनक्रियास से आने वाली पेनक्रियाटिक डक्ट। इसमें भी दो डक्ट्स होती हैं, एक होती है मेन डक्ट, एक होती है एसेसरी डक्ट। मेन डक्ट जो होती है उसे आप कहते हो डक्ट ऑफ विर्सिंग, और जो एसेसरी डक्ट है उसे आप कहते हो डक्ट ऑफ सर्टोनिनी, ठीक है। तो वी हैव दीज टू डक्ट्स, डक्ट ऑफ सेंटोनिनी एंड डक्ट ऑफ विर्सिंग। बट वेल फॉर द शेक ऑफ नॉलेज आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग। इसके पास दो डक्ट हैं, अगर आप चाहो तो नाम ना भी याद रखो, इट्स फाइन एंड इट्स नॉट इन द सिलेबस, बट ठीक है। एक तो ये वाली डक्ट हो गई, मेन डक्ट हो गई, और एक हो गई एसेसरी डक्ट। इसको अभी छोड़ते हैं हम, ठीक है। सर बीइंग ओवरलोडेड, कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कौन सी डक्ट आ रही है, दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट, दिस इज पेनक्रियाटिक डक्ट, एंड द प्लेस वेयर द बोथ मीट्स, जहाँ ये मिलेंगी, दिस इज द प्लेस कॉल्ड एज अ, दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज अ हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये ओपन होगी किसमें? आपके इंटेस्टाइन के पार्ट में, जो कि है ड्यूडेनम, ठीक है। जिसको हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन जॉइन द स्पेशल क्लासेस, और मैंने ये सारा पार्ट डिटेल में कवर करा के रखा हुआ है। वी हैव दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे क्या है, एक ऐसी ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ वेटर, सॉरी एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। यहीं पे एक ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वेटर या हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। यहाँ पे एक स्पिंचर है कॉल्ड एज अ स्पिंचर ऑफ ओडाई, जो इसको रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है।
तो यही वाले नाम से बस आपके लिवर में, जो आपको इसकी एनाटॉमी ध्यान रखनी है। मैं इन्हीं सभी पार्ट्स को फटाफट से ड्रॉ करके एक बार इसे वापस से रिकॉल करते हैं और सारे नाम की लिस्ट मैं साइड में लिख भी देता हूँ। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ, सॉरी, फंक्शंस ऑफ लिवर। ठीक है, तो कुछ हमने ऐसा बनाया था, है ना, हमने कुछ ऐसा बनाया था, दिस इज द falciform ligament, something called as a falciform ligament. Falciform ligament. Then we have, this is something called as a gallbladder. Gallbladder हो गया. This is the cystic duct. This is cystic duct. है ना, यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, राइट हेपेटिक डक्ट, यहाँ से आ रही है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, and the place where they both meet is called as a common hepatic duct. Okay, this is called as common hepatic duct. Fine. कॉमन हेपेटिक डक्ट और बाइसिस्टिक डक्ट जहाँ पे मिलती है, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज, या उस कॉमन डक्ट को आप कहते हो क्या, कॉमन बाइल डक्ट, बिकॉज उसमें बाइल आ रहा है। दिस कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, नाउ फाइनली दिस कॉमन बाइल डक्ट एंटर इनसाइड द ड्यूडेनम। यहाँ से सी शेप ऑर्गन है हमारे पास इंटेस्टाइन का, कॉल्ड एज ए ड्यूडेनम। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हियर वी हैव द पैनक्रियाज आल्सो, द अनदर ऑर्गन, है ना, एक लीफ शेप का ऑर्गन होगा इस तरीके से। और इसमें से हमारे पास कौन सी डक्ट है, वी हैव द पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दो नाम है, डक्ट ऑफ विर्सिंग, डक्ट ऑफ सर्टोनिनी। ठीक है, यहाँ से ये वाली हो गई। अब देखो, यू कैन सी हियर बोथ द डक्ट्स विल मीट एट अ प्लेस। ये वाली हो गई कौन सी, कॉमन बाइल डक्ट, ये वाली हो गई पैनक्रियाटिक डक्ट। दे बोथ आर मीटिंग एट अ प्लेस एंड दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज, दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये हो गई कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो लोकेशन है, दिस पॉइंट जहाँ पे ये ओपन हो रहे हैं, दिस लोकेशन इज कॉल्ड एज अ वेटर ऑफ एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, और इसे रेगुलेट करने वाला एक स्पिंचर है, एंड दैट स्पिंचर इज कॉल्ड एज स्पिंचर ऑफ ओडाई, स्पिंचर ऑफ ओडाई। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स वी हैव। आई होप ये सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, और इन्हीं पार्ट्स को ध्यान रखना है आपको। क्लियर, आगे बात समझ में। दिस इज समथिंग वी हैव टॉक अबाउट द लिवर ऑल्सो। अब बात कर लेते हैं। देखो, एक लिवर को अगर आप काटोगे ना, इफ यू डाइसेक्ट द लिवर, तो एक छोटा सा पार्ट अगर आप निकालते हो, है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड सेंटर में ये होती है वेन, हम कहते हैं ना हेपेटिक वेन, है ना, दैट कैरीज द डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, या टॉक्सिक ब्लड उसमें होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये कॉमन हेपेटिक वेन है जो ऐसे बाहर निकल रही है और फिर कंबाइनली फॉर्म होकर, दिस इज समथिंग यू डोंट हैव टू स्टडी इट हियर, है ना, बट मैंने आपको दिखा दिया बस। ठीक, आ जाओ इस पे। तो लिवर की बात हमारी हो गई है। ठीक है, दिस इज अबाउट द लिवर, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिए। गॉल ब्लैडर वी हैव टॉक अबाउट। कैन यू टेल मी, कमेंट मी, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला कौन सा हार्मोन होता है? नेम द हार्मोन विच कॉन्ट्रैक्ट द गॉल ब्लैडर, जिससे कि बाइल जूस निकल सके। ठीक है, तो ये आप मुझे बताना कि कौन सा वाला, है ना, व्हाट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। फाइन, Here I complete the about the liver also. इसके फटाफट से फंक्शन देख लेते हैं। What are the functions of liver? अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन विल से दैट इज गोइंग टू बी डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन मतलब अमाइनो एसिड को तोड़ता है और ये आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी वगैरह आपको बनाता है आपको। ठीक है, देन सेकंड फंक्शन इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ये आपकी बॉडी में टॉक्सिक ब्लड को, है ना, प्योरीफाई भी करता है लिवर। दिस इज ऑल्सो द फंक्शन। थर्ड फंक्शन, है ना, एरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस वी कैन से, हीमोपोइसिस
इज द फंक्शन, है ना, हमारी आपकी बॉडी में एम्ब्रियो के अंदर इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ऑल्सो, तो ब्लड की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है आपका, है ना। इसके अलावा स्टोरेज इज द फंक्शन वेयर इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ सर्टेन आयंस, है ना, जिंक आयन, मैग्नीशियम आयन, इन आयंस को ये स्टोर करता है। एंड उसके अलावा यू कैन से इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोर ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइको ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। जब भी आपको अगर चाहिए होगा फूड या एनर्जी, तो इट बेसिकली ब्रेक डाउन दिस ग्लाइकोजन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलाइसिस, और वहाँ से आपको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा वी हैव द फंक्शन ऑफ द लिवर, दैट इज बेसिकली टॉक्सिफिकेशन हो गया, हेमोपोइसिस, स्टोरेज, है ना, ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस या हेल्प्स इन द इम्यूनिटी ऑल्सो, इम्यूनिटी में भी इसका रोल होता है ना। एंड इसके अलावा एक्सक्रीशन में भी इसका रोल है, इट प्लेज अ रोल इन द एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑल्सो। ये सारे फंक्शंस होते हैं इसके, है ना, बाकी पूरी लिस्ट होती है फंक्शंस की, बट इन योर सिलेबस यू हैव टू नो अबाउट ओनली दीज पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट व्हाट डू वी हैव द next part called as a pancreas. Now let's talk about the last part, which is pancreas. Here you will see the pancreas secrete the enzymes and the hormone that helps in the digestion. Pancreas क्या निकालता है? It secretes some hormones and pancreatic juice and pancreatic आपका ट्रिप्सिनोजन होगा, लाइपेज होगा, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन होगा, तो दीज थिंग विल बी देयर, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। पेनक्रियास इज द कंपाउंड ऑर्गन, कंपाउंड का मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली अ मिक्स्ड ऑर्गन। मिक्स मतलब कि ये जो है ये एंडोक्राइन ऑर्गन भी है और एक्सोक्राइन ऑर्गन भी, ओके। इट फंक्शंस एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों की तरह ही काम करता है ना। इसका कुछ पार्ट जो है दिस दैट एक्ट एज अ एंडोक्राइन एंड सम पार्ट इज कॉल्ड इज एक्ट एज अ एक्सोक्राइन। मैं दिखा देता हूँ आपको, लेट मी शो यू, दिस इज द पेनक्रियास वी वर हैविंग, और इस पेनक्रियास में जो लास्ट वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज एक्टिंग एज अ एंडोक्राइन, it has the cells called as a isolates of Langerhans. I'll write here, okay. And ये जो बचा हुआ सारा पार्ट है, this whole part is exocrine in nature. This whole part is exocrine in nature. You can say 98% क्या होता है? एक्सोक्राइन होता है, और सिर्फ 2% क्या होता है? एंडोक्राइन होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द द मेजॉरिटी ऑफ दिस पेनक्रियास इज एक्सोक्राइन इन नेचर। तो एज जो एक्सोक्राइन पार्ट है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ राउंडेड, है ना, लोब्यूल नॉन एज अ एसिनी, है ना, दिस इज 98%, ठीक है। नेक्स्ट, एसिनार सेल्स जो होते हैं सिक्रीट द एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, ये पेनक्रियाटिक जूस को बाहर निकालती है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस इज व्हाट, इसके पास क्या क्या होता है? तो दिस पेनक्रियाटिक जूस हैज फर्स्ट, इसके पास लाइपेज होता है, सेकंड इसके पास ट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिनोजन, इट हैज द काइमो ट्रिप्सिनोजन या काइलो ट्रिप्सिनोजन, एंड इट हैज आल्सो हैज द बाइकार्बोनेट, इट आल्सो हैज बाइकार्बोनेट। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पेनक्रियाटिक जूस के पास पाई जाती, अंडरस्टूड। और बस यही है ना, बाकी आई वाज टेलिंग अबाउट दिस, दिस इज व्हाट पेनक्रियास, पेनक्रियास में दिस इज द पार्ट एंडोक्राइन, द होल पार्ट इज एक्सोक्राइन। दो डक्ट्स होती हैं, एक तो मेन डक्ट और एक होती है दूसरी वाली accessory duct. This is the accessory duct, and this accessory duct basically called as duct of Santorini, and this is the main duct called as duct of Wirsung. Duct of Wirsung. Fine. तो शेयर वी कंप्लीट दिस पेनक्रियास, जिससे आपका निकलेगा क्या? पेनक्रियाटिक जूस। इसमें होंगे लाइपेज, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और बाइकार्बोनेट, एंड दे विल समवेयर हेल्प इन द फॉर डाइजेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन्स। इसमें बहुत चीज़ें प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगी, दे विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स ऑल्सो, एंड मेजॉरिटी में फैट्स डाइजेस्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो है आपका बाइल जूस, ठीक है। तो ये जो हमने लिवर में पढ़ा है, दिस सिक्रेट्स द बाइल जूस, है ना, गॉल ब्लैडर सिक्रेट्स द बाइल जूस, दैट हेल्प्स इन द बाइल juice. This helps in the emulsification of
फैट, उसमें ये हेल्प करता है। फाइन, शेयर कंप्लीट दिस चैप्टर सॉरी दिस लेक्चर जहाँ पे हमने बात की पेनक्रियास के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ लिवर एंड अबाउट द सलाइवरी अमाइलेज। ये सारी बातें हम सलाइवरी ग्लैंड, तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। एंड इफ यू वांट टू गेट दीज टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन फुल डिटेल, यू कैन जॉइन आवर कोर्सेज। यू कैन यूज माई कोड व्हेनेवर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, दैट इज LGIS10। एंड मिलेंगे हमारी कुछ आने वाले सेशंस में। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। बाय बाय, टेक केयर। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, वहाँ पे आपकी क्लासेस रोज चलती हैं। एट 9 PM वी हैव द स्पेशल क्लास, एट 7:45 PM वी हैव द प्लस क्लासेस ऑल्सो। So you can come and follow me there. You will get a lot of study materials from my side. Just join me or follow me on Unacademy. Okay? Bye bye. Take care.